ٹھیک ہے، کورٹ انہیں سزا نہیں دیتی، مگر سب کچھ جائز طریقے سے تو ہوتا، غلط طریقے سے تو نہیں۔ اور اس جائز طریقے کا جو خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑتا، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ جو لڑکے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تمہارے نام پتہ سے واقف نہ ہونے کے باوجود تمہارا اس طرح پیچھا کر رہے تھے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد تمہیں چھوڑ دیتے، تم ان کو کورٹ میں لے کر جاتی اور وہ اس کے بعد تمہیں بخش دیتے۔ آپ عباس کی طرح ہائپوتھیٹیکل باتیں نہ کریں۔ وہ کیا کر دیتے، کیا کر سکتے تھے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، حقیقت تو یہی ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ عباس ٹھیک کہہ رہا تھا، تم سچ مچ حواس کھو چکی ہو۔ عمر بے اختیار جھلایا۔ علیزہ نے اسے دیکھا۔ یہ جو اتنا لمبا چوڑا بیان دے رہے ہیں آپ، اس کے بجائے آپ صرف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عباس اور آپ کے لیے یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا، وہی میل شوونزم جو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فیملی کی عورت کو ایسے کسی کرائسس سے گزرنا پڑے۔ آپ کی نسبت عباس زیادہ صاف کو ہے، جس نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا۔ آپ صرف ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی عباس کی طرح یہ اعتراف کر لیں کہ یہ صرف فیملی پرائڈ تھی جسے انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ عمر نے اس کی بات کے جواب میں بڑے واشگاف انداز میں کہا، اوکے، تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ ہاں، میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی میری فیملی کی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ کیا یہ کافی ہے تمہارے لیے؟ کیا وہی عمر ہے آپ جو چند ماہ پہلے شہباز منیر کی موت پر واویلا کر رہا تھا، اور آج وہ خود 4 انسانوں کو مارنے کے بعد بھی ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہا؟ کیا انکل ایاز کے نقش قدم پر چل رہے ہیں آپ بھی؟ اس نے تلخی سے کہا۔ اس وقت شہباز منیر کی بات نہیں ہو رہی۔ عمر نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ان 4 کو مارنا ٹھیک لگا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت انکل ایاز کو بھی شہباز کو مارنا ٹھیک لگا ہو۔ ہر شخص اپنے ہر ایکشن کو حق بجانب ثابت کر سکتا ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس وقت شہباز کا مارا جانا ٹھیک ہو سکتا ہے انکل ایاز نے ایک ٹھیک قدم اٹھایا ہو۔ وہ اس کے جواب پر دنگ رہ گئی۔ اور تم وہ شخص تھے جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ وہ بری طرح مشتعل ہو گئی۔ پہلی بار اس نے عمر کو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس تبدیلی نے عمر کو متاثر نہیں کیا۔ اور تم وہ شخص تھے جو مگر مچھ کی طرح اس کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی موت صحیح تھی۔ تم کو شرم آنی چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ تم سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہو، دوسروں کو گدھوں کی طرح نوچنے والے، اپنا حصہ لے کر اطمینان سے بیٹھ جانے والے۔ بس یہ ہے کہ تم میں سے کچھ کے دانت شروع میں نظر آ جاتے ہیں، کچھ کے بہت دیر میں۔ وہ اب بلند آواز میں بول رہی تھی، میں تم سے یہ سننے نہیں آیا کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جسٹس نیاز کو فون نہیں کرو گی۔ عمر نے اس کے رد عمل کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں جسٹس نیاز کو فون کروں گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تم یا عباس مجھے کب تک یہاں قید کر کے رکھ سکتے ہو؟ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ مجھے جب یہ موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہی کروں گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے بھی مار ڈالو، شہباز کی طرح، ان 4 لڑکوں کی طرح، کسی پولیس مقابلے میں کسی بھی طرح۔ پھر تم لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اب چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس خاموشی کو عمر نے توڑا۔ تم جسٹس نیاز کو ضرور بتاؤ گی؟ ہاں، میں ضرور بتاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ بھی کہے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ ابھی بتا دو، فون نمبر تو ضرور ہوگا تمہارے پاس، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو، نمبر ملاؤ اور بات کرو۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں نمبر ملا دوں؟ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، میں عمر جہانگیر ہوں، جسٹس نیاز سے بات کروائیں۔ وہ اب کال ملا کر آپریٹر سے کہہ رہا تھا۔ آپریٹر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس بار علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے جی کڑا کر اس سے موبائل پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد جسٹس نیاز لائن پر تھے اور وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ اس نے انہیں اس رات کے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ پھر اس نے اپنا ایڈریس اور فون نمبر بھی انہیں بتا دیا۔ کیا تم یہ سب پریس اور کورٹ میں کہہ سکتی ہو؟
انہوں نے اس کا ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد صرف ایک ہی سوال کیا، ہاں جب بھی آپ چاہیں، ٹھیک ہے، میں بہت جلد تم سے کانٹیکٹ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر فون عمر کی جانب بڑھا دیا۔ وہ عمر کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی، اسے نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان تھا، نہ ہی خوف زدہ۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے علیزہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ علیزہ کو اس وقت بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے کندھے اسے یکدم بہت ہلکے لگنے لگے تھے۔ فون کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا اور میں عباس سے کہہ دوں گا، وہ باہر موجود پولیس گارڈ ہٹا لے گا۔ اس کے بعد تم اپنے ہر فیصلے کی ذمہ دار ہوگی، فیصلوں کی بھی اور ان کے نتائج کی بھی۔ میں یا کوئی دوسرا تمہیں راستہ دکھانے یا کچھ بھی سمجھانے نہیں آئیں گے۔ تم آزاد ہو، جس طرح چاہے اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کر سکتی ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں اس سے بات کرتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ اس نے اپنے بہت قریب کہیں بے تحاشا فائرنگ کی آواز سنی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم سے گزر گئی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے پہلے جو چیز اسے اپنا وہم محسوس ہوئی تھی وہ وہم نہیں تھی۔ گھر کے باہر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ کتنا باہر وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ رکے ہوئے سانس کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھی وہ چند لمحوں تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، نائٹ بلب بھی آف تھا۔ وہ رات کو نائٹ بلب چلائے بغیر کبھی نہیں سوئی تھی، مگر اس وقت ہوش میں آتے ہی اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن کسی وقت بھی رک جائے گی۔ سب کچھ چند لمحوں میں۔ اندھیرے میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے تاریکی میں بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کرنے کی کوشش کی اور اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ لائٹ نہیں تھی۔ اسے نائٹ بلب کے بجھے ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اگلا خیال اسے نانو کا آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گی، شاید اپنے کمرے میں یا پھر۔ اس نے بیڈ کو ٹٹولتے ہوئے فرش پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ فائرنگ اب بھی کسی توقف کے بغیر جاری تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندھیرے میں دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ رستے میں آنے والی کئی چیزوں سے ٹکرائی، مگر دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دروازے کو کھول کر وہ کوریڈور میں نکل آئی۔ کوریڈور بھی مکمل طور پر تاریک تھا۔ فائرنگ میں اب اور بھی شدت آ گئی تھی۔ علیزہ نے کوریڈور کی دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے نانو کے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ نانو کے کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے وحشت کے عالم میں اسے دھڑدھڑایا۔ دروازہ لاک تھا۔ نانو، نانو، دروازہ کھولیں، میں علیزہ ہوں، اس نے بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ فائرنگ کی آواز کے دوران بھی اس نے اندر سے آنے والی نانو کی آواز سن لی۔ علیزہ، ٹھہرو، میں آ رہی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد نانو نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نانو بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم نانو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں ابھی تمہارے پاس ہی آنا چاہ رہی تھی، مگر اندھیرے میں رستہ، وہ خاصی سہسیمگی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ اور لائٹ، پتہ نہیں لائٹ کیوں چلی گئی ہے؟ نانو، یہ فائرنگ کہاں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اندھیرے میں نانو کی آواز ابھری۔ ہمیں فون کرنا چاہیے پولیس کو، علیزہ نے بے تابی سے کہا۔ کیا آپ نے پولیس کو فون کیا ہے؟ نہیں، میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی، ابھی میں چند منٹ پہلے ہی تو اٹھی ہوں۔ پتہ نہیں اصغر کہاں ہے؟ علیزہ نے چوکیدار کا نام لیا۔ میں لاؤنج میں جا کر اسے انٹرکام پر فائرنگ کے بارے میں پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر نہ ہو رہی ہو، علیزہ نے کسی امید کے تحت کہا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے ٹارچ نکالنے دو، نانو نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ فائرنگ ابھی بھی اسی طرح جاری تھی، اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ نانو اب خاموش تھی، وہ کمرے میں ٹارچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نانو پلیز جلدی کریں، اگر ٹارچ نہیں مل رہی تو رہنے دیں، کچن سے ٹارچ لے لیں گے یا پھر اسی طرح لاؤنج میں چلتے ہیں، علیزہ نے بے صبری سے کہا۔ نہیں، مل گئی ہے مجھے، نانو نے اسی وقت ٹارچ روشن کر دی۔ کمرے کی تاریکی یکدم ختم ہو گئی۔ وہ نانو کے ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے گیٹ پر چوکیدار کے کیبن میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ کیا ہوا؟ نانو نے بے تابی سے پوچھا۔ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ لائٹ نہیں ہے، انٹرکام کیسے کام کر سکتا ہے؟ علیزہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا باہر نکل کر اسے دیکھیں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ علیزہ بی بی، آپ باہر مت آئیے گا، پیچھے سے خانسامہ کی آواز آئی تو وہ چونک کر مڑی۔ کیوں؟ ہمارے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر پر؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاں، میں کچھ دیر پہلے باہر نکلا تھا،
मगर असगर ने मुझे वापस भिजवा दिया। खानसामा ने चौकीदार का नाम लिया। फायरिंग कौन कर रहा है? अलीसा ने पूछा। ये तो नहीं पता, मगर असगर कह रहा था कि बाहर कोई गाड़ी है और कुछ लोगों ने दीवार फलांगने की कोशिश भी की। वो अंदर आना चाह रहे थे। कुत्तों के भौंकने पर असगर ने उन्हें देख लिया और वो अंदर नहीं आए, मगर उसके बाद वो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। असगर भी उन पर जवाबी फायरिंग कर रहा है, मगर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं और अभी तक गेट के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने गेट पर भी बुरी तरह फायरिंग की है। वो मुरीद बाबा की आवाज में लर्जिश महसूस कर सकती थी। हमारे घर के अलावा इर्द गिर्द के तमाम घरों में लाइट मौजूद है। शायद उन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी है। असगर खौफजदा है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। अंधेरे में वो उन्हें देख नहीं सकेगा। मुरीद बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप घबराएं मत, बस अपने क्वार्टर में ही रहें। अलीसा ने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की। अलीसा, ये क्या हो रहा है? नानो बेहद खौफजदा थी। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। अभी पुलिस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीसा ने इंटरकॉम बंद कर दिया और तेजी से फोन की तरफ बढ़ी। टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही वो साकित हो गई। क्या हुआ? फोन मिलाओ। नानो, फोन डेड है। शायद किसी ने फोन की तार काट दी है। उसने कांपते हाथ के साथ रिसीवर वापस रखते हुए कहा। और मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसका कार्ड खत्म हो चुका है। मेरे खुदा, अब क्या होगा अगर ये लोग अंदर आ गए तो? नानो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकी। वो सोफे पर बैठ गई। नहीं, वो अंदर कैसे आएंगे? पूरा इलाका जाग चुका है। इतनी फायरिंग हो रही है। अभी कुछ देर में साथ वाले घरों के चौकीदार भी बाहर निकल आएंगे, फिर तो ये लोग भाग जाएंगे। अलीसा ने अपने खुश्क होते हुए हलक के साथ कहा। बेवकूफी की बातें मत करो अलीसा, नानो ने उसे डांटा। कौन अपने घर से इतनी बेतहाशा फायरिंग में बाहर निकलेगा? कोई नहीं। मगर नानो, वो लोग पुलिस को जरूर इत्तला कर देंगे। बल्कि हो सकता है अब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हों। अभी पुलिस आने ही वाली होगी, अलीसा ने कहा। नानो उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय खामोश रही। टॉर्च की मध्यम रोशनी में बेतहाशा फायरिंग और कुत्तों के भौंकने की आवाज में वो चंद लम्हे दम साधे एक दूसरे को देखती रही। ये सब उमर की वजह से हुआ। उसने पुलिस गार्ड क्यों हटा ली है? नानो अचानक गुस्सैली आवाज में बोली। शाम को पुलिस गार्ड हटी और अब हम ये सब भुगत रहे हैं। अलीसा कुछ नहीं बोल सकी। वो कुछ चोर सी बन गई। वो उन्हें बता नहीं सकती थी कि ये सब कुछ खुद उसकी वजह से। नानो एकदम उठकर खड़ी हो गई। मैं मुरीद से बात करती हूँ, वो कुछ करे। वो टॉर्च पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। अलीसा खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। नानो अब मुरीद बाबा से बात कर रही थी। तुम किसी तरह क्वार्टर से बाहर निकलकर साथ वाले घर की दीवार फलांग कर उनके यहाँ जाने की कोशिश करो। उन्हें सारी सूरत हाल बताओ। अलीसा ने अचानक उनके पास आते हुए उनकी बात काटी। मगर नानो, मुरीद बाबा की जान को खतरा हो सकता है। अगर साथ वालों के चौकीदार ने उन पर फायरिंग कर दी तो, और वहां भी तो कुत्ते मौजूद हैं, तो फिर क्या किया जाए? आखिर कितनी देर तक हाथ पे हाथ रखकर बैठा जा सकता है? नानो ने उसे जवाब दिया। अलीसा उनकी घबराहट और परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। वो खुद भी उन्हीं कैफियत से दो चार थी, मगर वो फिर भी सोच रही थी कि चंद मिनटों के बाद पुलिस किसी न किसी तरह वहां आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिन पहले होने वाले वाकये ने अगर एक तरफ उसे खौफ और सरासीमगी से दो चार किया था, तो दूसरी तरफ वो ये भी जान गई थी कि उसे मजबूत पुष्टपनाही हासिल है और ऐसी किसी सूरत हाल में वो किसी आम शहरी की तरह गैर महफूज नहीं थी। इसलिए परेशान होने के बावजूद वो पिछली बार की तरह सरासीमगी का शिकार नहीं थी। पता नहीं और क्या क्या मुसीबत अभी बाकी है, नानो ने सोफे की तरफ जाते हुए कहना शुरू किया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी और अब अचानक उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और सर पकड़े हुए सोफे पर बैठ गईं। अलीसा उनकी अधूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। वो जानती थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से नानो के लिए वही किसी न किसी तरह परेशानी का बायस बन रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस गार्ड हटाए जाते ही इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उसका ख्याल था कि अब्बास और उमर ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात का मुजाहिरा कर रहे थे और उसकी कतन ज़रूरत नहीं थी, मगर उस वक्त वहाँ बैठे वो दिल ही दिल में एतराफ़ कर रही थी कि वो बहुत से मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा इमेच्योर थी। अगर उसे मामूली सा शुबा भी होता कि उसे ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उमर को कभी पुलिस गार्ड हटाने ना देती। अगरचे वो जानती थी कि पुलिस गार्ड हटाने की वाहिद वजह उसकी अपनी ज़ात थी। अगर वो जस्टिस नयाज को फ़ोन ना करती तो शायद सब कुछ पहले ही की तरह रहता। वो इस कदर गैर महफूज ना होती।
मगर इन तमाम एतराफ़ात के बावजूद वो इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल बेबस बैठी हुई थी। बाहर होने वाली फायरिंग एकदम बंद हो गई। वो दोनों चौंक गईं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अभी भी पहले की तरह आ रही थी, मगर फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई थी। मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं, अलीज़ा ने गैर मामूली पुरुम्मीदी से कहा। हाँ शायद, नानो ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो बाहर कान लगाए बैठी थी। मैं मुरीद बाबा से बात करती हूँ, वो बाहर निकल कर देखें कि चौकीदार कहाँ है, अलीज़ा ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा। नानो खामोश रही। उसी वक्त लाउंज के दरवाजे की बैरूनी जानिब कुछ आहटें उभरी। वो दोनों यकदम चौंक गईं। मेरा ख्याल है मुरीद बाबा और चौकीदार आए हैं। वो लोग यकीनन भाग गए हैं, अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो बेख्तियार लाउंज के दरवाजे की तरफ गई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल देती, नानो ने उसे रोक दिया। दरवाज़ा मत खोलो, पहले तस्दीक कर लो कि बाहर चौकीदार या मुरीद ही है, नानो ने दबी आवाज़ में कहा। अलीज़ा रुक गई। दरवाजे से कुछ फासले पर रुककर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ मध्यम आवाज़ें उभर रही थी, मगर उनमें से कोई आवाज़ भी शनासा नहीं थी। फिर किसी ने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखकर उसे घुमाया। अलीज़ा के पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी। मुरीद बाबा या असगर अगर दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद होते तो वो कभी इस तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करते। वो बुलंद आवाज़ में इजाज़त लेते। अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए उसने खौफ के आलम में पलटकर नानो को देखा। वो भी सोफे पर बिल्कुल साकित बैठी थी। बाहर कौन है? अलीज़ा ने यकदम अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। दरवाजे के बाहर यकदम खामोशी छा गई। बाहर कौन है? उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा। इस बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। वो यकदम बिदक कर नानो की तरफ गई। अब क्या होगा नानो? वो लोग अंदर आ चुके हैं। पता नहीं उन्होंने चौकीदार और मुरीद बाबा के साथ क्या सुलूक किया है, उसने नानो के करीब जाकर दबी हुई आवाज़ में कहा। नानो ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं अब क्या होगा, अगर ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए तो? अलीज़ा, हमें लाउंज से चले जाना चाहिए, नानो ने दबी हुई आवाज़ में सरगोशी की। कहाँ चले जाना चाहिए? अंदर किसी कमरे में। नानो, वो वहाँ भी आ जाएंगे, हम कहाँ छुपेंगे? वो हमें ढूंढ लेंगे। वो अब रूहानसी हो रही थी। दरवाजे पर एक बार फिर आवाज़ें गूंज रही थीं। नॉब को एक मर्तबा फिर घुमाया जा रहा था। फिर बाहर से एक भारी और बुलंद मर्दाना आवाज़ में किसी ने कहा, हम लोग जानते हैं अंदर सिर्फ तुम दोनों हो। हम सिर्फ अलीज़ा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं और उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बेहतर है तुम दोनों दरवाज़ा खोल दो, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। दरश्ती और खरख्तगी से कहे गए उन जुमलों ने अंदर मौजूद दोनों औरतों के बाकी मानदा हवास भी गुम कर दिए थे। मेरा नाम? ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? अलीज़ा ने खौफ और बेयकीनी के आलम में कहा। उनको किसने भेजा है? या अल्लाह, अलीज़ा ये सब क्या हो रहा है? नानो यकदम उठकर खड़ी हो गई। हमें बेसमेंट में चले जाना चाहिए, ये लोग वहाँ नहीं आ सकेंगे, जल्दी करो। वो अलीज़ा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी हम वहीं छुपे रहेंगे, तेजी से उसके साथ चलते हुए नानो ने कहा। वो माऊफ होते हुए जहन के साथ नानो की हिदायत पर बिला चूं चरा अमल कर रही थी। तहखाने का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के बाद नानो ने टॉर्च अंदर से बुझा दी। वो तारीकी में एक पुराने सोफे पर बैठ गई जो वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा पुराना सामान पड़ा हुआ था और वो ऐसे सामान को स्टोर करने के लिए ही काम में लाया जा रहा था। वहाँ बैठकर वो ऊपर घर में होने वाली किसी कार्रवाई को जान नहीं सकती थी। अलीज़ा का जहन अब भी उस शख्स के कहे जाने वाले जुमले में अटका हुआ था। हम अलीज़ा को लेने आए हैं। मेरा नाम, मेरा एड्रेस, आखिर किस लिए? ये कौन लोग हैं? उसे अपना आप किसी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। चंद दिन पहले की पुरसुकून जिंदगी एकदम जैसे किस्सा पारीना बन गई थी और अब आगे और क्या होने वाला था? ये कौन लोग हो सकते हैं अलीज़ा? नानो की मुतफक्किर आवाज़ अंधेरे में गूंजी। मैं नहीं जानती नानो, मैं क्या बता सकती हूँ? उसने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े हुए कहा। वो लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे? हाँ, मेरी यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरा नाम क्यों ले रहे थे। मुझे कैसे और किस हवाले से जानते हैं? अंधेरे में वो एक दूसरे को देख नहीं सकती थी, मगर उनकी आवाज़ें उनकी कैफियत को जाहिर करने के लिए काफ़ी थी। ये सब उमर और अब्बास की वजह से हुआ। ये लोग यकीनन उन चारों लड़कों में से किसी फैमिली के भिजवाए हुए हैं। वो एकदम मुश्तइल होकर बोली। ना वो उन चारों को कत्ल करते, ना ये लोग यहाँ इस तरह मेरे पीछे आते।
عمر اور عباس نے تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا. کیا بچایا ہے انہوں نے؟ جو بات چند گھنٹوں میں ایک FIR کے ساتھ ختم ہو سکتی تھی، وہ اب مجھے اس طرح اپنی زندگی بچانے کے لیے یہاں چھپنے پر مجبور کر رہی ہے. کیا حفاظت کی ہے ان دونوں نے میری؟ اس کا خوف اب مکمل طور پر اشتعال میں تبدیل ہو گیا تھا. نہ یہ لوگ انہیں قتل کرتے، نہ کوئی اس طرح بدلہ لینے کے لیے مجھے ٹریس آؤٹ کرتا. یہ سب ان کی وجہ سے ہوا. وہ عباس اور عمر کو مورود الالزام ٹھہرا رہی تھی. اوپر سے پولیس گارڈ بھی ہٹا لی. اس نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑ دی. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ آخر مجھے کب تک اور کہاں تک تحفظ دے سکتے ہیں. مجھے انہی چیزوں سے خوف آتا ہے جو اب بھوت بن کر میرے سامنے کھڑی ہیں. وہ دونوں تمہارے دشمن نہیں ہیں. نانو نے ان دونوں کی دفاع کی کوشش کی. دشمن نہیں تو میرے دوست بھی ثابت نہیں ہوئے. اس نے درشتی سے کہا. نانو کی طرف سے ان دونوں کے لیے حمایت اس وقت اسے بری طرح مشتعل کر رہی تھی. پتہ نہیں انہوں نے چوکیدار اور مرید بابا کے ساتھ کیا کیا ہے. اسے بات کرتے کرتے اچانک ان دونوں کا خیال آیا. پولیس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا. آخر اتنی فائرنگ ہوئی ہے اس علاقے میں، اور پھر ساتھ والے سارے گھروں نے بھی پولیس کو رنگ کیا ہوگا. پھر بھی پتہ نہیں ابھی تک پولیس کیوں نہیں آ رہی. نانو کو اچانک ایک دوسری تشویش ستانے لگی. اگر پولیس نہ آئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نانو کے سوال نے اس کے خوف کو پھر بیدار کر دیا. آخر ہم یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نانو نے کہا. ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ وہاں ہوئے تو وہ ہمیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے. اگر ہم انہیں وہاں نہ ملے تو؟ علیزہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی. تو وہ پھر شاید یہی سوچیں گے کہ ہم کسی بیسمنٹ میں ہیں، اور پھر وہ لوگ شاید یہاں پہنچ جائیں گے. علیزہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بار بار کھولنی اور بند کرنی شروع کر دیں. اس کے ہاتھوں اور پیروں کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. نانو نے اس بار دھیمی آواز میں کہا. علیزہ چپ چاپ طریقی کو گھورتی رہی. اس کے کان باہر سے آنے والی کسی بھی آواز پر لگے ہوئے تھے. It's terrible. اس نے نانو کی بات کا جواب نہیں دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند دن پہلے کے واقعات اتنی جلدی دہرائے جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ بدتر انداز میں. نانو اب خاموش ہو گئی تھی. شاید وہ علیزہ کی کیفیات کو سمجھ رہی تھی. وہ دونوں وہاں کتنی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی انہیں اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ ضرور جانتی تھیں کہ انہیں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے تھے. پھر اچانک انہوں نے تہہ خانے کے دروازے پر کچھ آہٹیں اور آوازیں سنی. علیزہ نے بے اختیار نانو کا ہاتھ پکڑ لیا. نانو اس کی ہاتھ کی کپکپاہٹ اور ٹھنڈک کو محسوس کر سکتی تھی. نانو! اس کی آواز ابھی اسی طرح لرز رہی تھی. وہ کیا کہنا چاہتی تھی نانو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی. تہہ خانے کے دروازے کو اب کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ دونوں دم سادے بیٹھی رہی. پھر علیزہ نے ایک بلند آواز سنی. گرینی اندر ہیں آپ؟ وہ عباس تھا. یا اللہ! نانو کے منہ سے نکلا. علیزہ کا رکا ہوا سانس دوبارہ چلنے لگا. عباس آ گیا ہے. پولیس پہنچ گئی ہوگی. آؤ اب یہاں سے نکلتے ہیں. علیزہ نے نانو کو کھڑا ہوتے ہوئے محسوس کیا. وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. نانو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ جلا دی. تہہ خانے کا اندھیرا ایک دم غائب ہو گیا. ٹارچ کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ دونوں دروازے تک پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا. عباس دروازے کے بالکل سامنے تھا. گھر میں اب روشنی تھی. شاید بجلی کی کٹی ہوئی تاریں جوڑ دی گئی تھیں. عباس اور علیزہ کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا. پھر عباس نے نانو کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. وہ لوگ چلے گئے؟ ہاں، پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے. اس نے علیزہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، یوں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. وہ وجہ جاننا چاہتی تھی. کون لوگ تھے وہ؟ عباس اب نانو سے پوچھ رہا تھا. نانو نے ایک بار پلٹ کر علیزہ کو دیکھا. عباس نے ان کی نظروں کا تعقب کیا. علیزہ کے چہرے کی رنگت کچھ تبدیل ہو گئی. نانو شاید کسی کشمکش کا شکار تھی. اوہ یا اللہ! ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ نانو عباس کی بات کا جواب دیتے ہوئے یکدم اس کمرے کی چیزوں کو دیکھنے لگی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی. پورے گھر کا یہی حال ہے. عباس نے نانو کو اطلاع دی. علیزہ بالکل شاکڈ تھی. تم کب یہاں آئے؟ میں آدھ گھنٹے پہلے پہنچا ہوں یہاں پر. مرید اور اصغر کہاں ہیں؟ نانو کو اچانک یاد آیا. اصغر تو زخمی ہے، اس کے بازو پر گولی لگی ہے، اور مرید کو باندھ کر انہوں نے کوارٹر میں بند کر دیا تھا. پولیس نے آ کر اسے وہاں سے نکالا. عباس نانو کے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا. یہ لوگ اندر کیسے آ گئے؟
लाउंज के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। वहीं से आए थे। आपने बहुत अच्छा किया कि बेसमेंट में छुप गई। मैं तो यहाँ आते ही परेशान हो गया था। पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद वो लोग आपको अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मगर फिर मुझे बेसमेंट का ख्याल आया और मैंने उसे चेक करना ज़रूरी समझा। वो अब भी अलीज़ा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए था। वो लोग अब लाउंज में दाखिल हो गए थे। घर में जगह जगह पुलिस वाले फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। फ़ोन और बिजली की तारें कटी हुई थीं जब मैं यहाँ आया। सबसे पहले तो मैंने उन्हें ही ठीक करवाया है। वो कौन लोग थे ग्रैनी? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है? अब्बास ने बात करते करते एक बार फिर पूछा। नानो ने एक बार फिर अलीज़ा को देखा। पता नहीं, उनकी आवाज़ मध्यम थी। अब्बास ने भी अलीज़ा को देखा। उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। उस पर एक नज़र डालने के बाद वो फिर से नानो की तरफ मुतवज्जा हो गया। 2 गाड़ियों में आए थे वो लोग। 8-10 तो ज़रूर होंगे। 3-4 को तो असगर ने भी देखा था। बाउंड्री वाला गेट तो उन्होंने फायरिंग से मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। वो लाउंज में खड़ा नानो को बता रहा था। अलीज़ा उसके चेहरे पर नज़र डाले बगैर उसकी बात सुनती रही। पुलिस अभी तक बाहर से गोलियां इकट्ठी कर रही है। ये सब उमर की वजह से हुआ। वो पुलिस गार्ड ना हटाता तो ये सब ना होता। अलीज़ा ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसकी आवाज़ में इश्ताल था। अब्बास ने बहुत सर्द नज़रों से उसे देखा। उमर ने आखिर पुलिस गार्ड क्यों इस तरह अचानक हटाई? उसे एहसास होना चाहिए था। नानो ने भी कुछ बरहम होते हुए कहा। अब्बास ने यकदम उनकी बात काट दी। इससे पूछें कि उमर ने पुलिस गार्ड क्यों हटा दी? उसने अलीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीज़ा साकित हो गई। अलीज़ा से? नानो ने हैरान होकर कहा। अलीज़ा का इससे क्या ताल्लुक है? पुलिस गार्ड तो उमर ने हटाई है। उमर आ रहा है, चंद मिनटों तक यहीं होगा। उससे पूछ लीजिएगा कि उसने पुलिस गार्ड क्यों हटाई। अब्बास ने नानो से कहा। अलीज़ा, क्या तुमने उमर से गार्ड हटाने के लिए कहा था? नानो ने अचानक मुड़कर अलीज़ा से पूछा। नहीं नानो, मैंने उससे गार्ड हटाने के लिए नहीं कहा, उसने मध्यम आवाज में सर झुकाए हुए कहा। इससे पहले कि नानो कुछ कहती, अब्बास ने अचानक लाउंज में मौजूद पुलिस के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, बाकी काम कल करना, अब सब कुछ रहने दो। वो लोग अपना सामान समेटने लगे। अलीज़ा तो नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अब्बास ने एक बार फिर उनकी बात काट दी। उमर को आ जाने दें, उसके बाद बात होगी। नानो उलझी हुई नजरों से अलीज़ा को देखते हुए लाउंज के सोफे पर बैठ गई। लाउंज में मौजूद पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान उठाते हुए वहां से निकलने लगे। अब्बास भी उनके साथ वहां से निकल गया। 5 मिनट के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ उमर भी था। अलीज़ा उस वक्त नानो के साथ सोफे पर बैठी हुई आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही लाउंज का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो अलीज़ा बीबी, क्या करना चाहती हैं आप? अब्बास ने उसके बिलमुकाबिल सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने सर उठाकर उसे और उमर को देखा। सर्द मेहरी और संजीदगी के अलावा उन दोनों के चेहरे पर और कुछ भी नहीं था। फ़ोन पर अब्बास से बात करना और बात थी, आमने सामने उससे कुछ कहना दूसरी बात, और वो भी उन हालात में जिसमें वो गिरफ्तार थी। वो उमर नहीं था जिस पर वो चिल्ला लेती। उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय उसने सर झुका लिया। वो जानती थी अब नानो सब कुछ जान जाएंगी। पिछले दिन उमर के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू और उसके बाद जस्टिस न्यास के सामने किया जाने वाला इंकिशाफ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसकी आवाज़ में अब कुछ तेज़ी थी। मैं क्या करना चाहती हूँ? उसने बमुश्किल कहा। कल फ़ोन पर कुछ कह रही थी तुम मुझसे। अलीज़ा ने नानो की तरफ देखा। वो उसी को देख रही थी। अलीज़ा की कुछ समझ में नहीं आया वो अब्बास की बात के जवाब में क्या कहे। उसका गुस्सा और इश्तियाल यकदम झाग की तरह बैठ गया था। अब खामोश क्यों हो तुम? अब्बास ने एक बार फिर तलखी से कहा। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? उसने सर उठाया। वही सब कुछ जो तुम मुझसे फ़ोन पर कह रही थी। अब्बास ने उसे घूरते हुए कहा। जो कुछ मैंने आपसे फ़ोन पर कहा, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने अब्बास से नजरें मिलाए बगैर कहा। और जो कुछ तुमने जस्टिस न्यास से कहा, मुझे उस पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। जस्टिस न्यास? क्या अलीज़ा ने जस्टिस न्यास से कुछ कहा है? नानो बेख्तियार चौंकी। कुछ? सब कुछ ग्रैनी, ये उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता चुकी है। किस तरह मैंने और उमर ने उनके बेटे और उसके दोस्तों को मारा, क्यों मारा, सब कुछ। अलीज़ा? नानो को जैसे अब्बास की बात पर यकीन नहीं आया। अब्बास एकदम होंठ भींचते हुए अपने सोफे से उठा और उसने एक झटके के साथ
अलीज़ा का हाथ पकड़कर उसे भी उसकी जगह से उठा दिया। अलीज़ा अब्बास की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो उसी तरह उसे बाजू से खींचते हुए लाउंज के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अब्बास, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? नानो ने मुदाखलत करने की कोशिश की। कहीं नहीं ग्रानी, अभी वापस ले आता हूँ, आप इत्मीनान से बैठें, उसने अलीज़ा की मज़ाहमत की परवाह ना करते हुए कहा, जो अब उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर उसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले आया। अब्बास भाई, मेरा हाथ छोड़ दें, आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं मुझे? अब्बास ने एकदम उसका हाथ छोड़ दिया। कहीं नहीं लेकर जाना चाहता तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ बाहर की दीवार और वो गोलियां दिखाना चाहता हूँ जो चंद घंटों में यहाँ बरसाई गई हैं। तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारी हमाकत की वजह से क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं देखना। अलीज़ा ने वापस अंदर जाने की कोशिश की। अब्बास ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गेट की तरफ ले जाने लगा। क्यों नहीं देखना? जो चीज तुम्हारी वजह से हुई है उसे देखना चाहिए तुम्हें, वो कह रहा था। अलीज़ा ने मज़ाहमत खत्म कर दी। उसका कोई फायदा नहीं था। गेट की तरफ जाते हुए उसने बहुत दूर से गेट पर बेशुमार छोटे छोटे सुराख देख लिए थे। वो सुराख किस चीज के थे उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद थीं। गेट पर मौजूद पुलिस वाले अब्बास को आता देखकर मुस्तैद हो गए थे। अलीज़ा की शर्मिंदगी में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। अब्बास अब खामोश था, मगर वो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था। गेट के बाहर जाते हुए उसने इंग्लिश में अलीज़ा से कहा, दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठे हुए बातें करना बहुत आसान होता है। तुम्हारी तरह हर एक को इखलाकियात याद आ सकती हैं। यहाँ खड़े होकर इस दीवार को देखो और फिर सोचो कि दीवार की जगह तुम होती तो। उसने अब्बास की बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ खामोशी से बाउंड्री वॉल को देखती रही, जो बुरी तरह मुस्ख हो चुकी थी। बाहर लगे हुए आराइशी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। रात को फ्लड लाइट्स की रोशनी में वो दीवार और गेट जितना खौफनाक लग रहा था, दिन के वक्त उससे ज्यादा लगता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक गोली काफी थी, वो मध्यम आवाज में इंग्लिश में बोला। शायद वो इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों की वजह से एहतियात कर रहा था। अलीज़ा कुछ बोल नहीं सकी। वो अब उसका हाथ छोड़ चुका था। अंदर आओ, वो दरश्ती से उससे कहते हुए वापस गेट की तरफ मुड़ गया। अलीज़ा ने उसी खामोशी के साथ सर झुकाए हुए उसकी पैरवी की। उसने गेट के अंदर आकर उससे कुछ नहीं कहा। तेज कदमों के साथ वो अंदर जा रहा था। अलीज़ा सर झुकाए उसके पीछे चलती रही। आगे पीछे चलते हुए जब वो लाउंज में पहुंचे तो नानो और उमर अभी भी वहीं बैठे हुए थे। नानो के चेहरे पर तशवीश थी, जबकि उमर के हाथ में उस वक्त पाइनएप्पल का एक टिन था और वो टांग पर टांग रखे हुए बड़े इत्मीनान से कांटे के साथ पाइनएप्पल के स्लाइसेस खाने में मसरूफ था। उन दोनों को अंदर आते देखकर उसने एक लम्हे के लिए नजर उठाई और फिर एक बार फिर पाइनएप्पल खाने में मसरूफ हो गया। अलीज़ा खामोशी के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। अब इसके बाद और क्या है आपके जहन में? अब्बास ने इस बार अलीज़ा का नाम नहीं लिया था, मगर अलीज़ा जानती थी ये सवाल उससे ही किया गया है। मुझे अब भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। उमर पाइनएप्पल खाते खाते रुक गया। अब्बास और उसने एक दूसरे को देखा। अगर उमर गार्ड ना हटाता तो वो लोग यहाँ कभी हमला ना करते, वो कह रही थी। कौन लोग? अब्बास ने तल्ख और तेज आवाज में उससे कहा। जो लोग भी यहाँ आए हैं। कौन लोग आए हैं? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हारे अलावा और किसको पता हो सकता है? आप गलत कह रहे हैं। मुझे कैसे पता हो सकता है कि यहाँ कौन आया है? तुम फोन करके लोगों को यहाँ बुलवाती हो और फिर ये कहती हो कि तुम्हें पता नहीं है। वो अब्बास का मुंह देखने लगी। मैं लोगों को फोन करके बुलवाती हूँ? हाँ तुम। मैंने किसी को फोन करके यहाँ नहीं बुलवाया। तुमने जस्टिस न्यास को फोन किया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपको लगता है कि उन लोगों को जस्टिस न्यास ने भिजवाया था? और कौन हो सकता है? वो उलझी हुई नजरों से उसे देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? जस्टिस न्यास ये कैसे कर सकते हैं? तुम किस दुनिया में रहती हो? अपनी आंखों पर कौन से ब्लाइंड्स लगाकर फिर रही हो? वो मायूस होते हुए जहन के साथ अब्बास का चेहरा देखती रही। जस्टिस न्यास मुझे अगवा करने की कोशिश करेंगे? वो ये सब करेंगे? क्यों? या अल्लाह। उसका जहन सवालों के गर्दाब में फंसा हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस न्यास ने ये सब किया है। अब्बास बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फोन पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, नंबर तुम जानती हो। फोन मिलाओ और उनसे बात कर लो। अपनी खैरियत की इत्तला दो उन्हें और साथ ये भी बता दो कि अभी तक तुम यहीं हो।
वो दोबारा किसी को भेजें। अलीसा अपनी जगह से नहीं हिली। तुम अक्ल से पैदल हो। आप मुझे इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप खौफजदा हैं। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। आप लोग उन चारों को कत्ल ना करते तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। उसने सर उठाकर अब्बास से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, कौन खौफजदा है और किससे? तुमसे? जस्टिस न्याज से? माय फुट। अब्बास इस बार बुरी तरह हत्ते से उखड़ा था। तुम क्या समझती हो कि मैं बहुत खौफजदा हूँ कल से? वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ कह रहा था। मुझे अपना करियर तारीख नजर आ रहा है। अलीसा ने सर झुका लिया। अपनी गर्दन में फांसी का फंदा नजर आ रहा है। वो अपने हाथों को देखती रही। तुम्हारे उस इंकिशाफ की वजह से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। अब्बास की आवाज बहुत बुलंद थी। जस्टिस न्याज के साथ होने वाली गुफ्तगू ने मेरी नींद और सुकून हराम कर दिया है। उसने अब्बास को कभी इतने इश्तियाल में नहीं देखा था। अंकल अयाज की तरह वो भी एक नर्मगोश शख्स था, मगर उस वक्त वो जिस तरह बोल रहा था, तुम्हारा ख्याल है कि कल मैं सलाखों के पीछे होऊंगा? अलीसा ने सर झुकाए हुए कनखियों से उमर को देखा। वो अब्बास या अलीसा की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो हाथ में पकड़े हुए कांटे और पाइनएप्पल के डब्बे के साथ मसरूफ था, हर चीज से बेपरवाह, हर चीज से बेनियाज, यूं जैसे वहां बहुत दोस्ताना गुफ्तगू हो रही थी। तुम कौन हो अलीसा सिकंदर, और जस्टिस नियाज कौन है? अलीसा एक बार फिर अपने हाथों को देखने लगी जो अब लरज रहे थे। वो उस लर्जिश को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिस खानदान से तुम और मैं ताल्लुक रखते हैं, उस खानदान के किसी शख्स को कोर्ट में ले जाना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरिब से निकलना। तुमने कल फोन पर मुझसे जो भी कुछ कहा, मैं उस सब पर लानत भेजता हूँ। तुम मेरे खिलाफ प्राइम विटनेस बनना चाहती हो, जरूर बनो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं। उसने सर उठाकर अब्बास को देखा। वो जो 4 लड़के मैंने मारे हैं ना, वो चारों अगर खुद भी जिंदा हो जाएं और कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ बयान दे दें तो भी मुझे सजा दिलवाना तो दूर की बात, लाहौर से मेरा ट्रांसफर तक कोई नहीं करवा सकता। उसकी आवाज और अंदाज में खुला चैलेंज था। मैं यहीं था, यहीं हूं, यहीं रहूंगा। उसकी आवाज अब पहले से हल्की और पहले से ज्यादा सर्द थी। अगर जस्टिस नियाज या तुम जैसे लोगों के कहने पर पुलिस को सजाएं मिलने लगे तो पूरे मुल्क की पुलिस तुम्हें सलाखों के पीछे नजर आएगी। अलीसा ने सर झुका लिया। तुमने कल खासी लंबी चौड़ी बात की थी मुझसे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ये सब कुछ मेरी नींदें नहीं उड़ा सकता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकालने के लिए तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा स्टंट चाहिए। वो जो कुछ कह रहा था वो सिर्फ बड़के नहीं थी। वो जानती थी कि अब्बास हैदर को बड़कों की जरूरत ही नहीं थी। अब्बास भाई, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि गलत काम। अब्बास ने दरश्ती से उसकी बात काट दी। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे प्रोफेशन की अखलाकियात सिखाने की कोशिश मत करो। मैं अपने प्रोफेशन को तुमसे बेहतर समझता हूँ। क्या सही है क्या गलत, उसकी तारीफ मुझे तुमसे नहीं चाहिए। वो खामोश हो गई। एंड डोंट ट्राई टू पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 माह किसी 3rd क्लास मैगजीन के दफ्तर में काम करने से तुम इस काबिल नहीं हो गई हो कि दूसरों को सही और गलत का फर्क बताती फिरो। अलीसा ने होंठ भींच लिए। तुम्हारे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड रिफॉर्मर्स, हमें और ना ही तुम्हें ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनने की जरूरत है। नानो ने अब तक होने वाली गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो अगर मुदाखलत करती भी तो अब्बास उन्हें बोलने का मौका ना देता। अलीसा को उसका अंदाजा था। चंद मिनट और अगर पुलिस को आने में देर हो जाती तो वो लोग बेसमेंट तक भी पहुंच जाते। उसके बाद वो क्या करते तुम्हें उसका अंदाजा है माय टैलेंटेड कजन। उसके लहजे में अब तंज था। तुम्हें यहीं मार देते वो, या फिर ले जाते साथ। कहां? ये फिर किसी को पता ना चलता। अलीसा के होंठ लरजने लगे। अपने आप को किस तरह फंसा लिया है तुमने, तुम्हें अंदाजा है? अलीसा की आंखें भीगने लगी। तुम्हें इन सब चीजों से बचाने के लिए उन चारों को मारा था, लेकिन तुमने खुद सारी मुसीबतों को दावत दे दी है। अपने साथ तुमने ग्रैनी की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। वो अपने होंठ काटने लगी। अब क्या करोगी तुम? बैठी रहोगी यहाँ अंदर इसी तहखाने में? कितने दिन रखेंगे पुलिस गार्ड बाहर? और कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन देंगे तुम्हें? बड़ा शौक है ना तुम्हें हीरोइन बनने का, लाइमलाइट में आने का, तुम्हें अंदाजा है? उसके आंसुओं ने अब्बास पर कोई असर नहीं किया। जस्टिस न्याज या बाकी तीनों के घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। आखिर मारे तो वो तुम्हारी वजह से ही गए थे। उसकी आवाज में अब तलखी के साथ बेरहमी भी थी।
अलीसा ने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। अपने फ्यूचर का सोचा है क्या होगा आगे? उसकी आवाज पहले से ज्यादा मध्यम थी, मगर आवाज में मौजूद तलखी कम नहीं हुई। अखबारों में तुम्हारा नाम आएगा। और किस तरह आएगा? लोग सल्यूट करेंगे तुम्हें, या तुम्हारे हीरोइज्म को, या फिर उंगलियां उठाएंगे तुम्हारे कैरेक्टर पर। वो अब भी उसी तरह बोल रहा था। और कौन खड़ा होगा तुम्हारे पीछे? जस्टिस नियाज। कब तक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे तुम्हें वो? उसके बाद क्या करोगी तुम? उसका दिल चाह रहा था वो उठकर वहां से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अब्बास की तमाम बातें सुनने पर मजबूर थी। और फैमिली के लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में सोचा है? जो भी किया गया तुम्हारे लिए किया गया, और अगर तुम दूसरों को डबोने की कोशिश करोगी तो तुम्हें डबोते हुए भी कोई तुमसे अपना रिश्ता सोचेगा ना लिहाज करेगा। और जब तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? वो तीखे लहजे में उससे पूछ रहा था। क्या इतनी बहादुर हो तुम कि अकेले दुनिया का मुकाबला कर सको? और एक दो दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। वो बेआवाज रो रही थी। जिस माशरे में तुम रह रही हो उसकी नॉर्म्स जानती हो? खानदान की डिस्कार्डेड औरत का मकाम जानती हो तुम किसी पहाड़ की चोटी पर सारी उम्र के लिए चिल्ला काटने भी बैठ जाओ तो भी तुम्हारी पाकबाजी पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब्बास की बातों में वही तलखी थी जो उमर की बातों में हुआ करती थी। उमर के लहजे में उसके लिए सर्द महरी के बावजूद कभी कभार अपनायत झलकने लगती थी। अब्बास के लहजे में ऐसी कोई अपनायत नहीं थी। वो बहुत ठोस लहजे में बोल रहा था। और तुम्हें अगर कहीं ये शुबा है कि मैं कभी अपनी उस हरकत पर पछतावा महसूस करूंगा या मुझे अपने उस फैसले पर कोई शर्मिंदगी होगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मुसलसल बोल रहा था। अगर दोबारा वक्त पीछे चला जाए तो मैं एक बार फिर वही करूंगा जो मैंने किया। मैं उन चारों को फिर शूट करवा दूंगा और 10 बार मौका मिलने पर भी मैं यही करूंगा। उसका लहजा भी उतना ही तल्ख था। ये कोई बेसोचा समझा फैसला नहीं था, तयशुदा था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अब अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने अभी तक पापा को तुम्हारी कल की हरकत के बारे में नहीं बताया, अब बताऊंगा। बाकी बातें तुम खुद उनसे कर लेना। उसकी आवाज का इश्तियाल अब बहुत कम हो गया था। ग्रैनी, आप अपनी पैकिंग कर लें। आप अभी मेरे घर शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, कम से कम तब तक जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो अब नानो से मुखातिब था। और अलीसा, जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हो। बेहतर है तुम खुद जस्टिस नियाज के पास चली जाओ। इस तरह कम से कम तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। और अगर तुम यहाँ ही रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अब यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। वो बात करते करते उठ गया। आइए ग्रैनी, आपके साथ आपकी पैकिंग करवाऊं। अलीसा उसी तरह सर झुकाए आंसू बहाती रही। चंद मिनटों के बाद उसने नानो, उमर और अब्बास को लाउंज से निकलते महसूस किया। अलीसा ने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और सर ऊपर उठाया। चंद लम्हे के लिए वो साकित हो गई। उमर वहीं था, सामने सोफे पर बैठे हुए। उस पर नजरें जमाए। अब उसके हाथ में पाइनएप्पल का टिन नहीं था। अलीसा ने एक बार फिर सर झुका लिया। उमर अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया। सेंटर टेबल को खींचकर वो उसके बिल मुकाबिल ले आया और टेबल पर बैठते हुए उसने अलीसा की आंखों से उसके हाथ हटा दिए। अलीसा ने बरहमी से उसके हाथ पीछे करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उमर, मेरी वजह से। तुमने पुलिस गार्ड हटाई थी, वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारी वजह से अब्बास ने मेरी इंसल्ट की है। उसने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, तुम्हें हकाइक बताए हैं। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय रोने लगी। तुमने सोचा है अभी कुछ देर के बाद जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ अकेले रह सकोगी? और फिर जो कुछ तुम करना चाहती हो, क्या उसके नताइज पर गौर किया है तुमने? तुम मंजर से हट क्यों नहीं जाती? वो एक लम्हे के लिए रुका। Why don't you get out of everything? अलीसा ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। क्या ये मुमकिन है? आप क्यों नहीं? कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे? अपना सामान पैक करो और अब्बास के साथ चली जाओ। सुबह वो तुम्हें इस्लामाबाद अंकल अयाज के पास भिजवा देगा। चंद माह वहां रहो, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वापस आ जाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसने जैसे चुटकी बजाते में हल पेश किया। क्या अब्बास मुझे लेकर जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। वो नहीं तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम अब भी हमारा हिस्सा हो। उसने जैसे अलीसा को यकीन दिलाया। मगर मैं जो कुछ जस्टिस नियाज को बता चुकी हूँ, सब कुछ कल प्रेस में आ सकता है और फिर उसको हम हैंडल कर लेंगे। वो अब तुम्हारा दर्द सर नहीं है।
تم بس خاموشی سے اسلام آباد میں رہنا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر عمر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں، تم فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ وہ محتاط اور سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں کسی چیز کے لیے بھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے نزدیک کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار میں اور عباس ہیں۔ پھر تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ فیملی میں نانو، میرے اور عباس کے علاوہ اور کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، اور ہم تینوں تمہاری اس حماقت کو بھلا سکتے ہیں۔ چند ماہ بعد تم اپنی زندگی دوبارہ یہیں سے شروع کر سکتی ہو۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ اسٹے آؤٹ آف ایوری تھنگ الیسا، جسٹ اسٹے آؤٹ۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور لفظوں کو سنتے ہوئے مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار ہو چکی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے۔ عمر کے چہرے پر پہلی بار ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ تم جا کر اپنی چیزیں پیک کرو، میں عباس سے بات کرتا ہوں، اس نے الیسا کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھتے ہوئے وہ بری طرح شکست خوردہ تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے میدان سے بھاگ جانے والا فوجی ہو۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جسٹس نیاز نے کیوں یہ سب کچھ کروایا؟ جب میں اپنی مرضی سے ان کا ساتھ دینے پر تیار تھی تو پھر اس سب کا کیا مطلب تھا؟ وہ اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے عمر اور عباس کو نہیں کہا تھا کہ وہ ان چاروں کو مار دیں۔ پھر میں آخر کس چیز کی سزا بھگتوں؟ وہ جانتی تھی ساری دلیلیں شرمندگی کے اس احساس کو مٹانے میں ناکام تھیں جس نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جس وقت اپنا بیگ اٹھائے لاؤنج میں آئی، اس وقت عباس، عمر اور نانو تینوں وہیں تھے۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ کچھ کہے بغیر ساتھ چلتے ہوئے وہ لاؤنج سے باہر نکل آئے جہاں اب ایک کار کھڑی تھی۔ وہ چاروں بڑی خاموشی کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے۔ نانو کے گھر سے عباس کے گھر تک کا سفر بھی اسی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ عباس کی بیوی تانیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید عباس نے اسے فون کیا تھا۔ کیا ہوا عباس؟ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے پوش میں ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ کون لوگ تھے گرانی؟ وہ اب نانو سے پوچھ رہی تھی۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکو وغیرہ تھے، عباس نے بات گول کرتے ہوئے کہا۔ اوہ گاڈ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ وہ اب تشویش بھرے لہجے میں الیسا سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس فائرنگ کی تھی انہوں نے اور پھر بھاگ گئے۔ چوکیدار معمولی زخمی ہوا تھا۔ اس بار بھی عباس نے ہی جواب دیا۔ تم نے کمرے ٹھیک کروا دیے؟ ہاں، میں نے بستر وغیرہ لگوا دیے ہیں۔ ویسے تو صبح ہونے والی ہے، مگر آپ لوگ تو ساری رات سوئے ہی نہیں ہوں گے، بہتر ہے کچھ دیر آرام کر لیں، تانیہ نے کہا۔ ملازم ان کا سامان لے کر پہلے ہی جا چکا تھا۔ تانیہ نانو کو ساتھ لے کر اندر جانے لگی۔ الیسا نے بھی ان کے پیچھے جانا چاہا مگر عباس نے روک دیا۔ الیسا، وہ رک گئی۔ عباس کی آواز نرم تھی۔ کچھ دیر پہلے والی تلخی اور ترشی غائب ہو چکی تھی۔ پریشان مت ہو الیسا، اس نے عباس کو دیکھا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ عباس 2 قدم آگے بڑھایا اور اس نے الیسا کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ ہمیں تمہاری بہت پرواہ ہے، اور اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو تو آئی ایم سوری۔ تمہاری چوٹ اب کیسی ہے؟ وہ اب اس کے گال پر پڑے ہوئے نیل کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تانیہ اگر اس چوٹ کے بارے میں پوچھے تو اس سے یہی کہنا کہ تمہیں گھر میں ہی لگی ہے۔ میں نے اسے چند دن پہلے کے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ الیسا نے سر ہلا دیا۔ الیسا نے صرف سر ہلا دیا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم یا تانیہ سے کہہ دو اور آرام سے سو جاؤ۔ میں سپہر کی فلائٹ سے تمہیں اسلام آباد بھجوا دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب اسے تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ الیسا کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ عباس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی اور وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ احسان فراموش تھی؟ اسے خیال آیا۔ وہ سر جھکا کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں اسے رہنا تھا۔ عمر اور عباس نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ پھر عباس ایک گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ الیسا نے کل میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔
अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसने कहा, बहरहाल अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। उमर भी मुस्कुराते हुए दूसरे सोफे पर बैठ गया। यू आर अ मास्टर प्लान मेकर, अब्बास ने सताइशी अंदाज में उमर से कहा। प्लान मेकर? उमर ने अपनी भवें उचकाते हुए कहा। उसने तो अंधी गली में लाकर खड़ा कर दिया था, इसके अलावा और चारा क्या था? अब्बास ने अब अपना मोबाइल उठा लिया। पापा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उसने एक नंबर डायल करते हुए उमर से कहा। उमर ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। अब्बास का राब्ता कायम हो चुका था। हेलो, वो अब अयाज हैदर से बात कर रहा था। अलीसा हमारे साथ आ गई है, उसने छूटते ही उन्हें इत्तला दी। गुड, उसे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है उसे कोई शक नहीं हुआ, वो खासी शर्मिंदा है, अब्बास ने कहा। ठीक है, तुम अब कल उसे इस्लामाबाद भेज दो। आपने मामा से बात की है? नहीं, अभी थोड़ी देर बात करूंगा। पहले करने का क्या फायदा होता? पहले तो ये कंफर्म हो जाता कि प्लान कामयाब रहेगा या नहीं। दूसरी तरफ से अयाज हैदर ने कहा, ठीक है, आप मामा से बात कर लें, और एक बात का ख्याल रखें, हमने अलीसा को यही बताया है कि आपको कुछ नहीं पता है, और हम जो भी कर रहे हैं या उसने जो भी किया है इसके बारे में आपको बताया नहीं गया। अब्बास ने अचानक याद आने पर कहा, ये क्यों? मैं उससे वाकई बात करना चाहता हूँ। उसकी सारी हिमाकत पर अयाज हैदर ने कहा, पापा, ये उमर ने कहा है, आप इस सिलसिले में उमर से बात कर लें। अब्बास ने मोबाइल पर कहा और बात करते हुए मोबाइल उमर की तरफ बढ़ा दिया। उमर अयाज हैदर के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। उसने किसी सवाल या एतराज के बगैर अब्बास के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद अयाज हैदर ने छूटते ही उससे भी वही कहा जो वो अब्बास से कह चुके थे। अलीसा को ये क्यों कहा है तुमने कि तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया? उन्होंने चुपते हुए लहजे में कहा। अंकल, वो पहले ही खासी शर्मिंदा है, मैं उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहता, उमर ने मदाफाना अंदाज में कहा। हो सकता है वो शर्मिंदा हो, लेकिन उससे इस सिलसिले में बात तो होनी चाहिए। जो कुछ उसने करने की कोशिश की है, इट इज सिंपली आउटरेजियस। मैं तो उससे सबकी तवक्को ही नहीं कर रहा था, और ना ही अब्बास। लेकिन अंकल, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। अयाज हैदर ने उसकी बात काट दी। उसे अंदाजा तो होना चाहिए कि उसकी ये हमाकत कितनी संगीन साबित हो सकती थी। आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो आजकल जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, शायद उसे सही अंदाजा ही नहीं है। अयाज हैदर ने उमर की बात काट दी। नहीं, उसे अंदाजा तो है। अब्बास से उसने जो कुछ कहा, उससे ये बात तो खासी वाज़े हो जाती है कि वो ये सब कुछ सोचे समझे बगैर नहीं कर रही। अंकल, वो उस वक्त गुस्से में थी। गुस्से में बहुत सारी बातें सोचे समझे बगैर कही जाती हैं, और फिर उसे हालात का कोई अंदाजा ही नहीं है। आप उसकी कंपनी और मिजाज तो जानते ही हैं। उमर अब मुकम्मल तौर पर उसका दिफा कर रहा था। वो अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आई। कुछ अरसे के बाद जब वो ठीक होगी तो अपनी इस हरकत की एब्सर्डिटी को खुद महसूस कर लेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उससे अभी कोई बात ना करें। अयाज हैदर ने गहरा सांस लिया। ठीक है, मैं उससे बात नहीं करता, तुम उसे सुबह इस्लामाबाद भिजवा दो। हाँ, वो मैं कर दूंगा। और ग्रैनी, उमर ने सुकून का सांस लेते हुए पूछा, फिलहाल तो उन्हें अब्बास के पास ही रहने दो, बाद में वो वापस चली जाएंगी, अयाज हैदर ने कहा। और मैं? उमर ने उनसे पूछा। तुम भी अभी वापस मत जाओ,